Good morning, my dear students. Today we are here to learn chapter number 1 in your class 3rd science, and this is your chapter number 1, and what is the name is food and feeding habits of animals. Alright, you can see by the picture that food and feeding habits of animal, what is the meaning of that? That means how they eat and what kind of food an animal eat. You will understand in this chapter in a very easy way. Listen, what is important? This chapter is very important for you because it is getting you the knowledge of animals feeding habits. By the picture, see the activity. Get set. Unscramble the names of the animals. Match them with the food they would like to have. That means there are some pictures and there are some animals' names, but they are unscrambled. You need to scramble them. See. This picture is of a milk, all right, and this nut, sugarcane, banana, and carrot. So you can understand that nut can be eaten by that kind of animal who have sharp front biting teeth. All right. So a squirrel having that kind of teeth. That means this unscrambled word will be squirrel. You can see by that Q-S-U-I-R-E-R-L. So you can join it and make it. Next picture is of milk. That means which animal is there who drink milk or having the habit to take milk daily. So is this with this help of this spelling is of elephant. That means elephant, it is not possible to take milk by an animal of elephant. That means this is a rabbit. This is also not the answer. And this TCA, what can be the word it is? It can be cat. So cat is the animal who drink milk. So we will match this from here. This is sugarcane. Sugarcane is the food of elephant. So we will match this to this. Next is rabbit. What a rabbit eat? Rabbit eat carrot or radish, some kind of vegetable. So we match rabbit to carrot. Now monkey. Monkey is very easy. Monkey can eat veggies also, eat fruits also. But here the picture of banana. That means we will match monkey to banana. All right. Now see, let us read about the food and feeding habits of animals. You can see the picture. This is the picture of a cow and this is the picture of a bear. All right. So cow is eating what? Cow is eating grass here in the picture, and this is the picture of bear. What a bear is eating? Bear is eating a flesh of a fish. All right. That means both feeding habits are different. So in the detail we will come to the next page. See. Why do animals need food? Animals को food की need क्यों होती है? You can see the picture. This is the picture of a cat. Animals need food to grow. That means अपनी body की growth के लिए हमें बढ़ने के लिए food की ज़रूरत होती है. You can see. Now we read the paragraph. Animals need food to grow. Have you seen a cow grazing in a field? What is the meaning of grazing? That means चरना. गाय जब घास चरती है उसे हम क्या कहते हैं? Grazing. Have you seen a cow grazing in a field? आपने काऊ को देखा एक फील्ड में ग्रेजिंग करते हुए? Have you seen a cat chasing a mouse? क्या आपने what is the meaning of chasing? पीछा करना. That means क्या आपने कभी कोई कैट देखी है जो चूहे का पीछा कर रही होती है? They do so because they need food. वो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें फूड की ज़रूरत होती है. All animals need food. जितने भी एनिमल्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है. Animals need food to grow. एनिमल्स को फूड की ज़रूरत क्यों है? बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए. All right. You may have seen little kittens. Little kittens कौन होते हैं? कैट एनिमल के जो बेबी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Kittens. So how greedily they suck their mother's milk. Greedily मतलब या तो हम यहाँ पर दो मीनिंग ले सकते हैं, या तो लालच से या उत्साह से.
वो अपनी मदर का जो दूध होता है उसे सक करते हैं. By this picture you can understand that slowly a tiny kitten grows into a big cat. एक छोटा सा किटन फूड की मदद से ग्रोथ करता हुआ किस में बदल जाता है? एक कैट एनिमल में बदल जाता है. A pet dog is usually healthier than a stray dog. हमारे घर में जो पेट डॉग होता है वो आवारा, दैट मीन्स हम यहाँ पर स्ट्रे डॉग का मीनिंग क्या होता है? आवारा कुत्ता. दैट मीन्स वो डॉग्स जो हमारे घर के बाहर सड़क पर रहते हैं, ऑलराइट, जिनकी टेकिंग केयर करने वाला कोई नहीं होता, उनकी कंपैरिजन अगर हम हमारे पेट एनिमल से करें, पेट डॉग से करें, तो हमारा पेट डॉग ज़्यादा हेल्दी होता है. आपने सोचा कभी ऐसा क्यों हुआ? दैट मीन्स हमारे पेट डॉग को एक बिल्कुल सही क्वांटिटी में फूड मिला और उसे फूड सर्च भी नहीं करना पड़ा. बट इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू स्ट्रे डॉग, उसे रोज़ाना फूड सर्च करना पड़ता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है. दैट्स वाई उनकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल मेंटेन नहीं रहती है. दिस इज़ बिकॉज अ स्ट्रे डॉग डज नॉट गेट इनफ फूड. उसे इनफ फूड नहीं मिलता, इसलिए उसकी हेल्थ ही नहीं बनती. एनिमल्स नीड फूड टू स्टे हेल्दी. यहाँ पर 2 पॉइंट्स आए हैं कि फूड की ज़रूरत क्यों है एनिमल को. फर्स्ट इज एनिमल नीड फूड टू ग्रो एंड सेकेंड एनिमल नीड फूड टू स्टे हेल्दी. हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की, राइट. एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी? ये जो एनर्जी आती है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर ताकत आती है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ इजीली, तो मेरे अंदर एनर्जी है, दैट्स वाई मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, दैट्स वाई आई एम एबल टू टॉक टू यू बिकॉज आई एम एनर्जेटिक. So see, some animals help us with our work. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे काम करने में मदद करते हैं. दैट मीन्स कुछ काम अगर हम नहीं कर सकते, वो काम हम किसकी मदद से कंप्लीट करते हैं? एनिमल की मदद से. हाउ इट इज़ पॉसिबल? दैट मीन्स दे नीड एनर्जी टू वर्क. अब किसी एनिमल को वर्क करना है तो उसे एनर्जी तो चाहिए. दैट मीन्स दे ऑल्सो नीड एनर्जी टू मूव अबाउट. उन्हें मूव करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर इधर से इधर मूव कर रही हूँ, आपसे टॉक कर पा रही हूँ, आपको चैप्टर पढ़ा पा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? एनर्जी की. नाउ कम टू द लाइन. दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. एनर्जी कहाँ से आई? फूड से. ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, टू वर्क, टू स्टे हेल्दी. यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड हो गया है. कौन सा? टू वर्क. काम करने के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है. नाउ सी, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो फ्लैश खाने वाले हों या वो प्लांट खाने वाले हों या वो दोनों टाइप की चीज़ों को खाने वाले हों, सब किस पर डिपेंड है? प्लांट पर डिपेंड है. प्लांट मीन्स पेड़ पौधों पर डिपेंड है. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स. दैट मीन्स few animals are there who eat plants. Some animals eat some. So these animals are called plant eating animal. जो प्लांट खाएगा वो क्या कहलाएगा? प्लांट ईटिंग एनिमल. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब कुछ एनिमल्स ऐसे आपने देखे होंगे जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं. सो दस ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. दिस इज लाइक अ चेन. अब ये एक चेन है ना, प्लांट एनिमल से कनेक्ट कर रहा है अपने फूड के लिए, तो ये क्या बन गई? एक चेन बन गई. सो दिस इज लाइक अ चेन इज कॉल्ड अ फूड चेन. करेक्ट. ऑल फूड चेन बिगिन फ्रॉम प्लांट्स. सारी फूड चेन किस पे डिपेंड करती है और किससे स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम plants. You can see by this picture that this is the picture of a plant. Now this animal, all right, this animal will eat this plant and this animal will eat this animal. That means हमारी फूड चेन स्टार्ट किससे हो रही है? प्लांट से. ऑल राइट, ये इसको खाता है तभी इसमें एनर्जी आती है और ये ग्रो करता है. और इसको खाने वाला एनिमल कौन सा है? लायन. यू कैन सी बाय दैट मीन्स ये इसको खाता है और ये इसको. अगर ये एनिमल इसको खाएगा ही नहीं तो ग्रोथ करेगा ही नहीं और आगे ये बढ़ेगा भी नहीं. तो जब इस एनिमल के पास, ये एनिमल अगर इसको खाएगा ही नहीं तो इसके पास फूड कहाँ से आएगा? यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट्स वाई ऑल फूड चेन इज बिगिन फ्रॉम plants. All right. Now see, herbivorous, carnivorous and omnivorous. What is the meaning of herbivorous, carnivorous and omnivorous? That means
हर्बीवोरस का मीनिंग हम समझ सकते हैं हर्ब, हर्ब का मतलब प्लांट, हर्ब का मीनिंग क्या होता है प्लांट, ऑलराइट। अब इसका डिटेल मीनिंग में नहीं जाएंगे हम क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। सो सी यू कैन सी द पिक्चर, प्लांट ईटिंग एनिमल, वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, हर्बीवोरस, प्लांट खाने वाले। यू कैन सी द नेक्स्ट पिक्चर, फ्लैश ईटिंग एनिमल, वो एनिमल, फ्लैश का मतलब होता है मांस, यू कैन अंडरस्टैंड दैट मीट, किसी भी एनिमल के मांस को हम मीट कह सकते हैं या फिर फ्लैश भी कह सकते हैं। तो फ्लैश ईटिंग एनिमल, वो एनिमल जो फ्लैश ईटिंग होते हैं या फिर जिनका फूड फ्लैश होता है वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस। नाउ कम टू दिस वर्ड omnivorous, that means those animal who can eat plant and flesh both, they will come in the category of omnivorous. Now we will read line by line. Animals like cows and giraffe eat grass or green plants, they are plant eating animals. तो plant eating animal का example क्या हुआ, cow and giraffe. Some animals are called herbivorous, herbivorous का मतलब साग सब्जी खाने वाले, तो इन्हें हिंदी में क्या कहा जाएगा, शाकाहारी। Animals like crows and bear eat both, come to this. Animals like lions and tigers eat the flesh of other animals, they are flesh eating animals, so they are called carnivorous. Animals like crows and bears eat both plants and the flesh of other animals, such animals are called omnivorous. They eat different parts of the plant, ये पूरा प्लांट नहीं खाते हैं, प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट ही खा पाते हैं। They eat food, they get food from animals too in the form of milk, eggs, fish, meat. Humans are also called omnivorous. Humans भी एक तरीके से एनिमल में ही आते हैं, ऑलराइट। और ये क्या कहलाते हैं, ह्यूमंस को हम क्या कहेंगे, ओमनीवोरस, दोनों टाइप का फूड खाने वाले। फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक का मीनिंग यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, जो पालतू होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस, वी शुड फीड देम वेल। अगर वो हमारे लिए इतना काम करते हैं तो उन्हें इतनी सारी एनर्जी चाहिए, तो हमें उन्हें अच्छे से खाना देना होगा, ऑलराइट। एनिमल्स लाइक ऑक्सन, horses, camels, mules, elephants and donkeys carry lots work in the fields. ये क्या करते हैं, बोझा उठाते हैं और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। They need energy giving food. अब यहाँ पर बात आती है कि फूड कौन से टाइप का आ गया, एनर्जी गिविंग। सारे फूड एनर्जी गिविंग हैं, बट कुछ पर्टिकुलर फूड्स ऐसे हैं जो ज़्यादा एनर्जी गिविंग होते हैं, जिनका मेन पर्पस एनर्जी गिविंग है। So they should be fed on oat and fodder. तो उन्हें क्या देना होता है, oat and fodder। ये बेसिकली जानवरों के लिए ही होता है, दैट मीन्स हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए ही होता है। बाय दिस पिक्चर यू कैन सी ऑक्सन प्लफिंग फील्ड, ये ऑक्सन्स हैं, बैल हैं, यहाँ पर 2 बैल हैं, दैट मीन्स ये बैल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लफिंग कर रहे हैं, यानी खेत में जुताई का काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं ना, आप देख रहे हो पिक्चर में। तो इन्हें किसकी ज़रूरत है, एनर्जी गिविंग फूड की। यू कैन सी हॉर्स बीइंग यूज्ड फॉर राइडिंग, हॉर्स राइडिंग के लिए यूज़ आ रहा है, इससे एनर्जी गिविंग फूड की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इसने ऑलरेडी दूसरे एनिमल या फिर ह्यूमन का बोझ ढो रखा है, इसलिए इसे ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड चाहिए। एंड एलिफेंट कैरिंग लॉग्स, अब आप देख रहे हो एलिफेंट ने कितना सारा बोझ ले रखा है, इसीलिए इसे किसकी ज़रूरत है, एनर्जी गिविंग फूड की। नाउ कम टू दिस, animals like cows, buffaloes and goats give us milk, they need milk producing food. वो एनिमल जो सिर्फ दूध देने का काम करते हैं, उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड, सो शुड बी फेड ऑन ग्रास एंड ऑयल सीड केक्स। हाउ एनिमल्स फीड, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। एनिमल्स किस तरीके से खाते हैं वो भी डिफरेंस है, यहाँ पर टीथ की बात भी आएगी, कैसे उनका माउथ और उनकी बॉडी कैसे बनी हुई है इस टाइप का फूड खाने के लिए, ऑलराइट। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एन एनिमल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स।
कैसा खाना वो खा रहे हैं वैसी ही उनकी माउथ की स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर और टीथ की स्ट्रक्चर वैसे ही डेवलप होगी। अगर अगर सबका खाने का तरीका सेम होता और सबका फूड एक जैसा होता तो सबकी माउथ स्ट्रक्चर सेम होती। क्या आप गाय के सामने फ्लैश रख दोगे तो क्या वो खा लेगी? कैसे खाएगी? उसकी बॉडी ऐसे डेवलप ही नहीं है, इसलिए वो नहीं खा सकती। सो द माउथ ऑफ एन एनिमल इज सूटेड टू द टाइप ऑफ द फूड इट ईट्स। एनिमल दैट स्वॉलो देयर फूड होल। अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा फूड निगलते हैं। आपने ये सब नेशनल ज्योग्राफी पे ज़रूर देखा होगा। सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड फ्रॉग्स swallow their food whole। फ्लैश ईटिंग एनिमल कौन से? स्नेक्स और फ्रॉग ऐसे हैं जो अपना पूरा फूड निगलते हैं। दे डू नॉट बाइट और च्यू देयर फूड। ये अपना फूड बाइट और च्यू नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास ये जॉ नहीं होते, इसलिए वो अपने फूड को चबा ही नहीं सकते, इसलिए अपना पूरा फूड स्वेलो करते हैं। सो दे डू नॉट हैव बाइटिंग और च्यूइंग टीथ। अ फ्रॉग ईट्स इंसेक्ट। फ्रॉग क्या करता है? इंसेक्ट्स को ईट करता है, खाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग एंड स्टिकी टंग। लंबी और स्टिकी, दैट मीन्स चिपचिपी टंग होती है जिसकी मदद से वो इंसेक्ट को रोल करता है और अंदर ले जाता है। स्टिकी का मतलब यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि इसकी अगर टंग स्टिकी नहीं होगी तो इंसेक्ट चिपकेगा कैसे उसकी टंग से? वो तो बाहर निकल सकता है। इट शूट्स आउट इट्स टंग टू कैच इंसेक्ट्स। यू कैन सी बाय द पिक्चर। फ्रॉग क्या करता है? अपनी लंबी ज़बान को एकदम से शूट करके बाहर निकालता है और इंसेक्ट को ग्रैब करता है और रोल करता हुआ अंदर ले जाता है। इट शूट्स आउट इट्स टंग टू कैच इंसेक्ट्स। द इंसेक्ट्स गेट stuck on the tongue, make a tasty meal for the frog. Animals that tear and chew flesh. अब ऐसे एनिमल जो अपने फूड को फाड़ कर या ऐसे काट कर खाते हैं। See, some flesh-eating animals like lions, tigers, foxes and dogs chew flesh and bones. Bones means हमारी हड्डियाँ. So they have very sharp, pointed and curved front teeth. इनके बहुत शार्प और पॉइंटेड टीथ होंगे जो फ्रंट में लगे होते हैं। और राइट, front teeth to tear flesh. They also have strong grinding teeth and the back of their mouth. Grinding का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पीसना। तो एक एनिमल के पास दो टाइप के टीथ हैं यहाँ पर। एक तो कैसे शार्प फ्रंट टीथ who can tear the flesh and grinding teeth also, जो उस फूड को पीस सकें और छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर सकें। एनिमल्स दैट ग्नो, ऐसे एनिमल्स जो दांत से काट कर फूड को खाते हैं। अब यहाँ पर कैसे होंगे? ग्नो मीन्स टू बाइट समथिंग रिपीटेडली और च्यू इट हार्ड। एनिमल्स लाइक रैबिट, रैट्स, स्क्वेरल ग्नो देयर फूड एंड हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ। इनके सबसे ज़्यादा शार्प फ्रंट टीथ होंगे ताकि ये किसी भी नट को ईजिली यूँ कट करके ईजिली खा सकें। दीज टीथ हेल्प देम टू बाइट इनटू सीड्स एंड फ्रूट्स। वो फ्रूट के सीड्स को भी खाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यू कैन सी द लायन, डॉग एंड एनिमल्स दैट ग्नो। कौन से एनिमल हैं जो ग्नो करते हैं? स्क्वेरल एंड रैबिट। कम टू द नेक्स्ट पेज। एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड च्यू कर्ड। ऐसे एनिमल्स जो ग्रास को ईट करते हैं और कर्ड को च्यू करते हैं। सम ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो एंड शीप फर्स्ट स्वेलो ग्रास विदाउट च्यूइंग इट। ये एनिमल कौन से? काउज, बफेलोज एंड शीप्स, ये पहले अपने फूड को निगलते हैं, पहले चबाते नहीं हैं। अंडरस्टैंड दैट। विदाउट च्यूइंग इट, बिना चबाए। आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ। याद रखो, ऐसे एनिमल काउ, बफेलो, शिप, इनके पास दो टाइप का स्टमक होता है। इस वजह से ये जो फूड अंदर स्वेलो करते हैं फर्स्ट टाइम में, जो च्यू नहीं करता, वो उनके फर्स्ट स्टमक में चला जाता है। और जब ये बैठ जाते हैं, और आपने देखा होगा ये कुछ ना कुछ चबा रहे होते हैं जब ये फ्री बैठे होते हैं, तब ये अपने उस फूड को पूरा बाहर तक लेकर आते हैं, मुंह तक, और फिर क्या करते हैं? उसको अच्छे से पूरे फूड को च्यू करना चालू करते हैं। आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ, देन दे च्यू इट विद देयर ग्राइंडिंग टीथ। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग कड। दैट मीन्स जुगाली करना। ऑलराइट, इट इज द मीनिंग ऑफ दैट। They also have biting front teeth to cut the grass. Watch these animals graze. आप इन animals को देखो जो graze करते हैं। These are there. The animal chewing the cud. पहले इसने क्या करा? ग्रास को खाया। कैसे खाया? सिर्फ निगला, चबाया नहीं पहले। और उसके बाद जब ये बैठ गई तो इसने क्या करना चालू किया? च्यूइंग द कड।
अब इसने जुगाली करना चालू किया, दैट मीन्स इसने अब उस ग्रास को पूरा पीसना चालू करा विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग टीथ. यस, फुल्ली राइट. नाउ सी एनिमल्स दैट लैप मिल्क और वाटर. ऐसे एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग्स लैप मिल्क और वाटर विद द टंग, जो पानी और दूध पीते हैं अपनी टंग की मदद से. यू कैन सी फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स. अब हम अदर एनिमल्स की फीडिंग हैबिट देखेंगे यहाँ पर. द ट्रंक ऑफ एन एनिमल हेल्प इट टू ईट एंड ड्रंक. एलिफेंट की जो ट्रंक, जो सूंड होती है इतनी लंबी, वो क्या हेल्प करती है? ईट और ड्रिंक करने में मदद करती है. इट यूजेज इट्स ट्रंक टू अपरूट ग्रास. अपरूट का मतलब ग्रास को यूं उखाड़ना अपनी ट्रंक की मदद से. एंड टीयर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम ट्रीज, और ट्रीज की ब्रांचेस को भी तोड़ना. ऑलराइट. द एलिफेंट ऑल्सो यूजेज इट्स ट्रंक टू सक अप वाटर एंड शूट द वाटर लाइक अ फाउंटेन. आपने देखा होगा कि एलिफेंट क्या करता है, अपनी ट्रंक की मदद से ही पानी पीता है और एक जोर से शावर भी देता है. आपने इजीली एक टीवी में देखी होगी ना ये चीज. सो then shoots the water like a fountain into its mouth. It uses its trunk to have shower also. यही ट्रंक उस एनिमल की शावर, दैट मीन्स उसे नहाने में भी मदद करती है. This is the last page of your chapter. See, an earthworm swallow soil which has parts of dead plants and animals in it. अर्थवॉर्म कैसे अपनी फीडिंग हैबिट डेवलप करती है? यू कैन सी एन अर्थवॉर्म swallows soil which has part to dead plants and animals in it, and butterfly has long sucking tube. It uses this to suck nectar from the flowers. Now this is the new word for you, nectar. That means फ्लावर के जूस को हम क्या कहते हैं? नेक्टर. सो इसको कौन सक करने का काम करता है? बटरफ्लाई. अ बटरफ्लाई हैविंग अ लॉन्ग sucking tube, so it uses this is to suck nectar from flowers. Mosquitoes and leeches suck blood from the bodies of the other animals. That means mosquito, leeches क्या है? इनका फूड क्या है? ब्लड को सक करना. किसके? किसी दूसरे एनिमल की बॉडी से. ना डोमेस्टिक एनिमल्स नीड केयर. यहाँ तक तो हमने फूड की बात कर ली, उनका कैसा फीडिंग हैबिट है उसकी बात कर ली, उनके दांत कैसे डेवलप है, उनकी बॉडी कैसे डेवलप है, बट इन एनिमल्स की केयर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. नाउ सी, डोमेस्टिक एनिमल्स नीड केयर. जो एनिमल्स हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे पालतू जानवर हैं, उनकी केयर करना क्यों ज़रूरी है? सी, ऑल एनिमल्स नीड प्रोटेक्शन एंड केयर. दैट मीन्स उन्हें केयर के साथ साथ किसकी ज़रूरत है? प्रोटेक्शन की. डोमेस्टिक एनिमल्स सर्व अस वेल इफ़ वी टेक गुड केयर ऑफ देम. अगर हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो वो हमारे लिए अच्छे से काम भी करेंगे. फूड एंड वाटर मस्ट बी गिवन टू देम इन क्लीन वेसल. हमें उन्हें साफ और स्वच्छ पानी ही देना चाहिए. देयर शेल्टर्स मस्ट बी क्लीन रेगुलरली. देयर शेल्टर्स मतलब जहाँ पर एक एनिमल रहता है वो जगह भी क्लीन रहनी चाहिए ताकि उन्हें कोई बीमारी न हो पाए. सिक एनिमल्स मस्ट बी ट्रीटेड इन टाइम. सिक एनिमल्स मीन्स वो एनिमल्स जो बीमार होते हैं उनकी टेक केयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम. वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड टू द एनिमल्स. हमें एनिमल्स के साथ काइंड होना चाहिए और उनके साथ ज़्यादा हम कह सकते हैं एग्रेसिव बिहेवियर नहीं शो करना चाहिए. ऑलराइट, दे कांट स्पीक, दैट्स वाई वी नीड टू टेक केयर देम एज मोर देन any other thing according to me. Alright, so this chapter is completed for me and for you as well, and the rest of the activities I will send you on WhatsApp. Thank you.